You. Recording in progress. Great. Shall we start? Shall we start? Yes. Okay. Here goes. अब आप उन बच्चों को सुनो, कितना सुंदर बात हो रही है, सुनो. What was that? Please say it. Asatoma, Sagamaya, Soma, Jyotirgamaya, Putrama, Amrutangamaya, Om Shanti Shanti Shanti. Perfect. Perfect. So there are three lines. First line is Om Asatoma, Sagamaya. what do I mean by asatu? What did Guruji tell you? Asatoma is the lie. And Satgamaya means Means going to truth. so the first line says From lie to truth. correct. So what do I mean by lie? Lie means to talk a lie, behavior lie. That is not the definition of lie, correct? Yes. Okay. But Guruji has told us to find out some other meaning, some deeper meaning. Now, you tell me. This, yeah, thank you. What about this book? This is truth or this is lie? Truth. What about it? Wait, let me ask you something about this. If this book gets burned, what will happen? The book. Burn. When it burns, what will happen? It will turn into Ashes. ashes. So is it truth? No. No. What about this? You tell me. And that's like that will also burn. Correct? And this is what is sofa. You tell me. It will also burn. Correct. It's a bed and not a sofa. Yes. Yes, this is the even bed can get turned into ashes. Then What about this whole house? you tell me. That will also do have an earthquake and it will fall. That is It can turn. So there will not be any. that will do. That will also. What about the air? You go above atmosphere, air is there. No. Okay. What about What about? what about the city? City also can get destroyed here. By tsunami. So what about V2? You tell me. No. We also get that. What about the parents? You tell me. What about the parents? You tell me. No. They are also going to. So lie means impermanence. Lie means impermanence. Nothing is permanent in this world. So what is permanent? What is permanent? There is something which is permanent. What could be? What could be that? Divine energies. Or God. divine energies are permanent, or God is permanent type. Okay. So what the first line indicates? That going from lie to truth or impermanence to permanent. Perfect. Perfect. Now let's go to the second line. What is it? Tamasoma, Jyotirgamaya. What do you mean by tamaso? Tamasoma. Darkness. Okay. And Jyotirgamaya means then Going to light. going to light. Okay. So when at night, when there is full darkness and mummy puts on light, what happened? Sit properly, listen to me. So when it is darkness and there is no light, then mummy comes and puts on light. So that is only tamasoma jyotirgamaya. Yes. There is no other darkness in this world. No. No darkness? No. Fine. You remember some days back, you had lost your picnic documents, right? And then whole night you couldn't sleep. Why? Why I was was confused, scared, and stressed. It was stressful. So what was that? Darkness of mind. Exactly. So darkness is not only this dark room. Darkness it can be in mind. When we are unaware, we don't know anything. When we are unaware, that is also darkness. So what does that second line imply?
from going to darkness to light, Correct. or going from unawareness to awareness. Perfect. That is the meaning of second line. Very good. That is the third line. Now you tell me what do you mean by Mrityu? That And Amritam Gamaya? light, going to light. No. Light. Going to light. Do you know what death is? Death means when the divine energies go out of the body. So, what do you mean by immortal? Immortal. That is going to life, but that is another, immortal is another word for that. Okay? So, from death to immortal, how can we go? Do you know that? You don't know. I'll tell you. Okay? See, when human body, or anybody, life becomes feeble or weak or old, they drop the divine energy, drop themselves. They drop the body and they go to some other mother's womb. They choose other mother's womb, right? Now, more aware you are, easily you can choose your conducive atmosphere. Fine? Now, one has to find out his own divine energies. How can I find our own divine energies within? Meaning, Meditation. oh, That what I did that every day. so he answered, meditation is the way to find out your own divine energies. When you become immortal through meditation, Why me? Everybody can become immortal. Immortal means you are becoming aware of your energies, nothing else. And then you can choose what to do with your divine energies or where you have to go. That's all, nothing else. That means you can become immortal is nothing but you can become permanent. Okay? So the third line indicates what does the third line indicate? from being human to being a superhuman at God. Okay, that is from you are becoming permanent, you are becoming immortal. Yes. So that means you find out your own energy, divine energy, and then you become superhuman, or you from being human to being God. divine. Correct. Okay. Thank you. Thank you. Great. That was good one, isn't it? Okay. Now, coming down, बाकी जितने बच्चे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, अब उनसे भी पूछेंगे आपको क्या बताना है। ये रहे अर्चित, अनम्यूट करो अर्चित, और अब आप सुनाओ। यस सर। हाँ, बोलो। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब हुआ टू, पहले लाइन का मतलब हुआ टेक मी फ्रॉम अनरियलिटी टू रियलिटी। दूसरे लाइन का मतलब हुआ टेक मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। और तीसरे लाइन का मतलब हुआ टेक मी फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू इमॉर्टैलिटी। गुड, वेरी गुड, नाइस वन, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया। Good, I'm happy now. See, they are small children like you. They are now doing it very well. आराध्या, अनम्यूट करो पहले। नमस्ते करो। करो। ओ, हो गया, नमस्ते भी हो गया, आशीर्वाद भी दे। बोलो आराध्या, कम ऑन। ओम अस्तु मा सद्गमय ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। हाँ, असत्य से और कुछ बताना है? अर्थ बताओ। असत्य से असत वेल वेल ट्राइड, इतना ही बहुत है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम और भी बताना, अर्थ भी बताना, ठीक है? ठीक है आराध्या, क्या अभी आता है तो बता दो। श्री रामचंद्र भी सुनो। श्री रामचंद्र चलो आज इसी मंत्र का श्री रामचंद्र अगली बार फिर कभी सुनेंगे, ठीक है? गुड ट्राई आराध्या, गुड ट्राई, बहुत अच्छा किया छोटे से बच्चे ने। मनवा अनम्यूट कर बेटा, मनवा अनम्यूट करो। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? प्रणाम गुरुजी। जी चलो बेटा, आयुष्मान। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। मैं आपको इसका मतलब बताना चाहती हूँ हाँ कि हाँ, पहले लाइन का ये मतलब है कि हमें अस्तोमा सद्गमय मतलब हमें बुरी आदतों से अच्छी आदतों की तरफ ले जाओ। फिर तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब है कि हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाओ। और मृत्योर्मा अमृतम गमय का ये मतलब है कि हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ। मतलब मैं ये तीनों पंक्तियों का छोटा सा सार बताना चाहती हूँ कि हे ईश्वर, मुझे हर क्षेत्र में बुरी आदतों से अच्छी आदतों की तरफ ले जाओ। गुड, वेल ट्राइड मनवा। और कुछ बताना है बेटा? नहीं। चलो ठीक, बहुत बहुत आशीर्वाद, वेरी वेल ट्राइड बेटा, बहुत अच्छे। तन्मय अनम्यूट। प्रणाम गुरु। जीते आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बताना ये गुरुजी, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। दो दो क्या है? कि गायत्री मंत्र का मतलब क्या होता है, और जो गायत्री मंत्र के अंदर जो ओम भूर्भुवः स्वः सर वो लाइन गुरुजी वो लाइन आती है, उसका मतलब क्या होता है? अभी पहले जिन लोगों ने इसके बारे में बताना है पहले उनका सुन लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी हम ले लेंगे, ठीक है? पहले जिनको इसके बारे में बोलना ना, फिर उसको पहले लेते हैं हम लोग। हाँ, और किसको सुनाना है? असतो मा सद, अच्छा इधर हितेश, अरे वाह। हाँ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ हो गया, प्रणाम। लिखते रहो, आयुष्मान बाबा सुनाओ। ओम अष्टो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। कुछ बताना है, इस पे कुछ बोलना है? हाँ। बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बताना है, बोलो। पहली लाइन का मतलब होता है कि हमें असत्य से असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की तरफ ले चलो। और दूसरी लाइन का मतलब होता है कि हमें कोई बात नहीं, सोच के आराम से बता दो, कोई जल्दी नहीं है। तमसो मां ज्योतिर्गमय रोशनी की तरफ ले चलो। और तीसरी लाइन का मतलब होता है कि मृत्योर्मा अमृतंगमय। मैं मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। यस 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 यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब सरिषा, आरुष, तारुष, अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ अब बताओ। प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद,
बताओ तीनों जने। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे सच्चिदानंद परमात्मा, please take me from untruth to truth, from darkness to light, and from death to life. वाह 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 वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद तुम तीनों को। गुड, वेल ट्राइड, बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। बेंगलुरु में तो कई सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं गोल्डी के यहाँ। गोल्डी अनम्यूट करो और सबको बोलो इकट्ठा सुनाए। प्रणाम सब लोग। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत। यस, 1 2 3 करके सुनाओ। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कुछ और बोलना है? जीता, ठीक है, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुड, वेल ट्राइड। अब और कौन है? इफ यू कांट ब्रिंग दैट डिजिटल हैंड टू रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बोल दो कि मुझे सुनाना है, तो फिर मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा। किसी को सुनाना हो तो हाथ खड़ा करके और कहे कि मुझे सुनाना है, तो मैं फिर सुनाने के लिए अपॉर्चुनिटी दूंगा। ठीक है, चलो। अब एक तन्मय का क्वेश्चन था, तन्मय का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। ठीक है, तन्मय। हाँ, अरे सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि मेरे तो साथ में भी कोई बैठा हुआ है जिसको बोलना है। हैंड रेज क्यों नहीं किया? हैंड रेज करना था ना। आपने पहले वाले जूम में तो मेरे से पूछा था, अब हाँ। तो आपने पूछा था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि आप मेरे से पूछोगे। ओ, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, रह गया। तो आप बताइए। फर्स्ट लाइन में आपको बता रहा हूँ। बताइए। ओम असतो मा सद्गमय, मीनिंग फ्रॉम delusion to clarity. Next line, second line. तमसो मा ज्योतिर्गमय, meaning incapacity to pure potential. Last line. मृत्योर्मा अमृतम गमय, meaning from meanness to expansiveness. Thank you. गुड, तेरी भी दादी ने तेरे को याद करा के भेजा है बेटा, है? गुड, चलो, वेल ट्राइड। तो अब हम लेते हैं तन्मय का। किसी और को तो नहीं बोलना? किसी और को बोलना है तो ऐसे हाथ खड़ा करो, अगर यही श्लोक सुनाना है तो, नॉट एनीथिंग एल्स। अच्छा, उधर रह गया बेटा तेरा। हाँ, तेरा नंबर आ रहा है मेरे पास, 826 करके। अनम्यूट करो, अनम्यूट कर बेटा। ब्लैक टी शर्ट, अनम्यूट करो बेटा, नाम नहीं आ रहा। अनम्यूट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सुनाओ, सुनाओ, आशीर्वाद सुनाओ। ओम अस्तो मा हम्म, सद्गमय, हम्म, हाँ हाँ, तमसो लिंक टूट रहा है, लिंक टूट रहा है। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करना। आज तुम्हारा लिंक टूट गया है बेटा, वो आ नहीं रहा, ना आवाज आ रही है ना पिक्चर आ रही है, दोनों नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, फिर ट्राई करना, ट्राई इट अगेन। हाँ, तन्मय, अनम्यूट कर बेटा,
तन्मय, अनम्यूट कर बेटा। तन्मय, बोलो क्या क्वेश्चन था तेरा? बोल ना, आवाज नहीं आई। पहला क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र का मतलब क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र के अंदर जो पूरी लाइन्स होती है उनका मतलब क्या होता गायत्री मंत्र के अंदर? है, जो जो पूरा जो मंत्र होता है उसका क्या मतलब होता है गायत्री अच्छा, मंत्र? अब एक काम करेंगे। अब जैसे हमने इस मंत्र को लिया है ना आज, ऐसे ही हम तन्मय के कहने पर अगली बार गायत्री महामंत्र को लेंगे। ठीक है? तो अगली बार की जो क्लास रहेगी वो गायत्री महामंत्र पर ही रहेगी। और मैं अपनी ओर से भी समझाऊंगा, पर मैं चाहूंगा कि मुझे भी तुम समझाओ, जैसे आज मुझे समझाया। बहुत थोड़े से बच्चों ने अपने शब्दों में बताया, बहुत अच्छा बताया, मुझे भी सीखने को मिला है। तो वो जो दो छोटे छोटे बच्चों ने सुनाया ना, रिकॉर्डिंग सुनाई थी, तो उनका तो मेरे को भी सीखने को मिला। आई ऑल्सो लर्न। और तुमने भी बताया, मैंने भी सीखा। तो अगली बार गायत्री महामंत्र को लेंगे, और फिर मैं भी सुनाऊंगा और तुम भी मुझे सुनाओगे। ठीक है? राइट तन्मय? इट्स अ प्रॉमिस विद यू। और अगली बार अगर मैं नहीं शुरू करूं तो तन्मय मुझे याद कराना। अब ये तन्मय क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट? ग्रेट। चलो, अब यहां दो बच्चे रह गए। माधव, अनम्यूट करो। माधव, अनम्यूट करो। अनम्यूट करके बताओ। आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। बताओ। हाँ। अस्तु मां सद्गमया मृत्योर्मृत्युर्मृत्युर्मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। तो गुड। पहली लाइन का हाँ मतलब हाँ। है असत्य सत्य से सत्य की, मतलब असत्य से सत्य की ओर लेके जाओ। और और सेकंड लाइन का second line मीनिंग से है अंधकार से प्रकाश प्रकाश की की ओर। ओर ले चल। और थर्ड लाइन का मतलब है मृत्यु से अमर तत्व की ओर चल। अमृत से अमृत की ओर ले चल। हाँ, गुड 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 गुड। एक बात तो पक्की है कि अभी छोटे बच्चों को ना, सबको पीछे से ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। किसी को मम्मी देती है, किसी को दादी, किसी को नानी देती है। वो देती है ना। हाँ, तो सबको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। और गुरबत, आपकी भी तो दादी सामने नीचे बैठी हुई है ना? किसी को पता नहीं चला ना? पर दादी बोली नहीं, चुपचाप बैठी रही। बैठी हुई तो हुई है, सबके यहाँ कोई ना कोई बैठा हुआ है इशारा देने के लिए। तो आज का ये हो गया। अभी किसी और का क्वेश्चन है क्या? अर्चित, क्या बोलना है बेटा? बोलो। गुरुजी, मुझे एक प्रश्न था। हाँ। मैंने जब मीनिंग में बताया था पहले लाइन का, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, तो असत्य क्या हुआ? इसे बहुत अच्छे रूप से वो जो दोनों बच्चों ने बताया ना, जिनकी रिकॉर्डिंग तुमने सुनी, हाँ। उन्होंने असत्य से सत्य की ओर। तो असत्य को उन्होंने बताया कि जो कुछ भी है इस पूरी सृष्टि में जो हमें दिखता है, ये नहीं रहने वाला। क्या है जो रहने वाला है? क्योंकि आसपास के घर भी हैं, पुराने होते हैं, टूटते हुए हैं। तुम देखते हो कि तुम हिस्ट्री में पढ़ते हो कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस का पता लगता है जो आज से पहले थी। वो पूरे पूरे नगर बसे हुए थे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कितनी सिविलाइजेशंस का पता लगता है। तो जितना कुछ भी हमारे आसपास बना हुआ है पदार्थ से, मैटर से, मटेरियल से, वो सब नहीं रहने वाला। वो असत्य है। और सत्य क्या है? क्या रहने वाला है? क्या है जो रहने वाला है? अगर जो रहने वाला है वो कौन है? वो तुम हो। तुम माने, तुम माने तुम्हारे बैठे भीतर बैठी हुई वो आत्मा। वो जो पवित्र आत्मा हम में बैठी है, वो सदा रहने वाली है। वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने कहा था असत्य से सत्य की ओर का अर्थ है फ्रॉम इम्परमानेंस, माने जो अस्थिर है, अस्थाई है, जो नष्ट होने वाला है, टुवर्ड्स परमानेंस, जो सदा रहने वाला है। सदा रहने वाली केवल एक ही चीज है पूरी सृष्टि में, आत्मा। बाकी सब
आना जाना, पुराना होना, बूढ़ा होना, उसका क्षय होना, माने धीरे धीरे डिजेनरेट होता है। एवरीथिंग हैज अ एज। ये माइक्रोफोन है ना, चाहे लोहे का बना है, पर इसकी भी एक एज है। एक आयु के बाद ये माइक्रोफोन भी खराब हो सकता है, इसका मटेरियल जो है वो रस्ट हो सकता है, इसको फाउंड्री में गलाया जा सकता है, तो इम्परमानेंट है, इसका रूप बदल सकता है। केवल आत्मा है जिसका कुछ नहीं बदलता, वो जैसी है वैसी सदा सर्वदा रहती है। तो असत्य से सत्य की ओर, फ्रॉम इम्परमानेंस टू परमानेंस, ये इसका मूल अर्थ हुआ। बाकी इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बाकी सब ने कहा कि असत्य से सत्य की ओर चलें, झूठ नहीं बोलना, न्याय की ओर चलें, अन्याय से न्याय की ओर चलें, वो भी मीनिंग सारे सही हैं। दे आर ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट मीनिंग। ठीक है, ठीक है, गुड। तो आज का ये सेशन यहां तक पहुंच गया है। अभी हितेश यहाँ से हाथ खड़ा किया है, ये तो मुंह बना रहा था छोटे वाला, अभी है हाथ खड़ा किया। बोलो क्या बोलना है, हाथ खड़ा किया है, बोलो क्या बोलना है। हाँ बोलो। जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा दूसरे शरीर से तो आत्मा भी मरती है हमारी। आत्मा मरती नहीं है, अगर मर जाएगी तो दूसरे शरीर में कौन जाएगा। लेकिन हाँ हाँ, जो दूसरे आत्मा जो जिसके शरीर में जाती है वो भी ऐसे तो नहीं कि जो वो दूसरी आत्मा जिसके अंदर गई है वो हमारी तरह ही बनेगा। नहीं बेटा, जब एक शरीर बूढ़ा होकर के जब पुराना हो जाता है कपड़ों की तरह, तो भगवत गीता में कहा भी गया ना, जैसे पुराने कपड़े होते हैं तो क्या करते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं ना। ऐसे ही जीवात्मा जब शरीर पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उससे काम लेने में कठिनाई होती है, तो जीवात्मा उसे छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है। ये सभी के साथ है, सबके साथ है। वी ऑल ह्यूमंस ऑन द प्लैनेट, वी ऑल एनिमल्स ऑन द प्लैनेट। वी माने वी शब्द में लगाया सबके लिए, क्योंकि हम सब एक से हैं। चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो कीटाणु हो, पक्षी हो, सब सब के सब जब शरीर बूढ़ा होता है तो शरीर छूट जाता है और फिर नए शरीर में जीवात्मा चली जाती है। ओके ओके। ओके, गुड गुड। माधव, माधव। नानू, हाँ बेटा। जो आखिरी लाइन में जो मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेके जाने के रहते हैं, उसमें अमृतत्व क्या है? अमृत तत्व का तात्पर्य बेटा मृत्यु और अमृत तत्व। मृत्यु अर्थात हम बहुत सारी अक्षमताओं में रहते हैं, इनकैपेसिटी में। हमारे भीतर बहुत सारी इनकेपेबिलिटीज होती हैं। छोटी छोटी बात होती है तो क्या कहते हैं, अरे मर गए यार, मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया, मर गए यार, कल असाइनमेंट देना स्कूल में नहीं किया, होमवर्क, मर गए, क्या हो गया, देखो अब ये हो गया। तो इसकी जगह पर जब हमारे भीतर बहुत सी कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, कैपेसिटी आ जाती है, तो क्या होता है, फिर हम मरते नहीं हैं। हालांकि इस शब्द के कई मीनिंग हैं, बड़े मीनिंग भी हैं। मृत्यु से अमरता की ओर इसका अलग मीनिंग भी है, पर कॉमन मीनिंग जो हमारी लाइफ में रोज रोज जो मरना है, वो क्या है, इनकैपेसिटी, इनएबिलिटी। जब हम अक्षम होते हैं उसे भी हम मृत्यु मानते हैं। हालांकि इसका मैंने कहा ना, इसका एक बड़ा आध्यात्मिक अर्थ भी है, पर मैं वो अर्थ ले रहा हूं जो प्रतिदिन स्तर पर हमारे जीवन में आता है। आध्यात्मिक तो जैसा उन दोनों बच्चों में अपनी नानी के साथ बताया था वो भी है। हाँ बोलो। अमृतत्व मतलब क्षमता होती है, क्या बेटा। क्षमता। अमरता क्षमता है ना, तो मरना नहीं पड़ेगा। अमरता रूपी क्षमता ही तो है, एक क्षमतावान अवस्था ही तो है जहां मरना ही नहीं पड़ेगा। अमर, अ लग गया ना, मरने के साथ अ लग गया, तो मरना नहीं है। तो इसका व्यवहारिक स्वरूप जो है, माने डे टू डे लाइफ में, वो यही है कि इनकैपेसिटी से कैपेसिटी की ओर चले जाना। ठीक है, गुड, जय कल्याण। हाँ, और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई नहीं है तो अच्छा, उधर बेंगलुरु, बेंगलुरु अनम्यूट। What's the meaning of dakshita? नमस्कार। What did you What's the yeah. meaning of dakshita? दक्षता, दक्षता। Dakshita. दक्षता ना, द एम आई राइट।
The THA. है? DAKSHITHA. दक्षता? Yes. दक्षता सर दक्षता द ना? जी सर हाँ, वही दक्षता है ना। दक्षता बेटा परफेक्शन को बोलते हैं। When you are perfect in something, we term it as daksha. You are daksha. It is perfection. What is that's your name tell sir no that it is your That's name. actually my name. अच्छा, that's your name. Dakshata. Good. Be blessed. बहुत आशीर्वाद। I don't know my meaning. ईशानी का मतलब क्या है? हैं? ईशानी. ईशानी का मतलब क्या है? तुम्हारा नाम ईशानी है क्या? हाँ. ये तो तुम्हें पता होना चाहिए अब। वैसे ईशान कौन भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ईशान इज ऑल्सो अ डायरेक्शन। टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? You know that. What is the meaning of your name? You tell me. You must be knowing the meaning of your name. You know tell sir no sir I don't know Okay, then find it out next time and inform me. okay Right? Okay. you Right. want to श्लोक Yeah. क्या बात है What is the meaning of श्लोक? Oh, ये क्या हुआ? लाइट चली गई थी बीच में। कोई नहीं। मीनिंग ऑफ श्लोक. क्या बोल रहा है लड़का? समझ नहीं आई गोल्डी। श्लोक. श्लोक सर मीनिंग ऑफ श्लोक? Yes. विच श्लोक? श्लोक. Is it your name? Yes. Now you have started asking me questions regarding your names. So if that is so, then you must answer about that, not me. For that, you have to answer. What is the meaning of your name? Don't ask me the meaning of your names. you have to find the meaning and come and tell next Yes, you have to find the meaning of your own name and then come back to me. Right? So what you want to ask me, you are utilizing me as your Nanu and Dadu as a dictionary. Isn't it? Nanu, Dadu, become our dictionary and tell us the meanings. Eh? So as far as the name goes, you give me the meanings of your own names next time because you will be knowing them better. Even I have to search the meaning of many names. I may not be aware about the meaning of each and every name that you have. So the right meaning has to be given by you yourself. So next time when Bangalore comes online, I may ask you your name and then I may also ask you what is the meaning of your name. So you make me learn. You make me learn the meaning of your name. you want to tell So wait a minute because my has come on the screen, right? I'm not able to hear. Sunai nahi diya. बोलो Maitri you want to say What should I say? you want to tell about your name No, I want to say. He's asking next class. Ask him to tell. Okay. Next class, you will tell me your name and the meaning as well. Okay. Now what Right? you can tell Okay. Okay. Fine. Fine. Right. We move on now. अब और किसी को क्या कहना है? अपने नाम का अर्थ मत पूछना भाई। अपने नाम का अर्थ अपने आप बताना। हाँ, 1+ क्या बोलना है 1+? जल्दी से। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सरिशा के लेंगे फिर बंद करेंगे। मेरा नाम मधुमती सिंह है। नाना जी ये आदि खलदल गंजनम का मतलब और ये दारुणम का मतलब क्या होता है? किसका? दारुणम। दारुणम। जब श्लोक सुनाऊंगा तो फिर तुम्हें इसका मतलब भी बताऊंगा। ठीक है? क्योंकि ऐसे बीच में से टूट करके तो क्वेश्चन मम्मी का निकल रहा है, तेरा नहीं आ रहा बेटा। ये बच्चों का प्रोग्राम, अपना अपना क्वेश्चन पूछो। ठीक है। मेरा तो सिर्फ ये क्वेश्चन था नाना जी। हाँ, कौन सा वाला बेटा?
ये दारुनम वाला और आदि खलदल गंजनम वाला। यही पूछता है ना। प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो, मैं समझ गया बेटा। ये बार बार पूछता है मेरे से। शत्रुओं के, असुरों के समूह को नष्ट करने वाला बताया गया है। शत्रुओं के, असुरों के समूह को नष्ट करने वाला, असुरों के समूह को नष्ट करने वाला। ठीक है, ठीक, चलो। हाँ बेटा, सारिशा, आरुष, तारुष। So, Mrityurma Amritam Gamaya. In other words, it's going from depression to greatest expression of yourself. Yeah, it can be so. It can be so. There's no doubt about that. Well said. Very well said. I accept that. Great. Be blessed. बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक, चलो। My next program, the time for my next program is now approaching. तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी ज्यादा हो गई जितना हमने ड्यूरेशन रखा। सो टुडे instead of around 25 minutes we have crossed, or we're crossing almost 40 minutes now. तो आज के लिए बहुत हो गया। अगली बार फिर से मिलेंगे और गायत्री महामंत्र पर बात करेंगे। और अगर नानू ये तुम्हारा दादू भूल जाए तो याद दिला देना, ठीक है ना। और अपने नाम का मीनिंग मुझसे मत पूछना, अपने नाम का मीनिंग मुझे तुम बताना, ठीक है। ग्रेट। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। प्रणाम